صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ثم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، علی کی علی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار پھر زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، کتنے خوش نصیب ہو آپ، کتنے معتبر ہو آپ، کتنے عظیم ہو آپ، کتنے نعمتوں والے ہو آپ، کہ جن کے اماموں میں سے پہلا کعبہ میں آیا، آخری کعبہ پر آئے گا۔ سردی کے ماحول میں اگرچہ پڑھنا، سننا، داد لینا مشکل ہے، لیکن ذکر مشکل کشا کا ہو تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں اپنی چھوٹی سی مشکل آپ کے سامنے بیان کر کے نوکری شروع کروں گا۔ آپ کو میرے مزاج سے آشنائی ہے کہ میں کھڑے ہو کے بڑی شعلہ بیانی خطابت کیا کرتا ہوں۔ آج بیٹھ کے خطاب کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ میں عمرہ کرنے گیا، 7 چکر لگا کے طواف کر چکا تھا۔ طواف مکمل کیا کہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ بیٹھتا بیٹھتا بیٹھ گیا، سمجھ نہیں آئی ہوا کیا۔ ایسے ہی لگا کہ رکن یمانی دیوار جہاں سے پھٹ کر راستہ دے چکی تھی علی کی ماں کو، وہاں سے ایک بندہ نظر آیا، چہرہ میں غور سے پہچان نہ سکا۔ اس نے مجھے یوں بازو سے پکڑا، سیدھا مستشفیٰ لے گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کے بعد اینجیوگرافی ہو چکی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا دل کا دورہ پڑا کیا ہوا۔ پریشانی، گھر والے پریشان تھے، لیکن میں پریشان نہیں تھا، کیونکہ ایام فاطمیہ پہ ذکر کرنے وہاں گیا تھا۔ بہرحال مجھے ہسپتال لے گئے، جو انہوں نے اپنا کھاتا کرنا تھا لیزر سے، وہ ببل ڈالتے ہیں آپ کی، وہ بلاکیج کھولتے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تھوڑی پریشانی تھی کہ پردیس ہے، اپنا کوئی ہے نہیں۔ اب جن کو عادات سے پیار ہے، عدد کی دنیا سے جو پیار کرتے ہیں، ان کو لطف آئے گا۔ جب میری آنکھ کھلی، جس کمرے میں تھا، کمرے کا نمبر 18 تھا۔ 8 اور 1 9، 9 عدد ہے کائنات کی مالکن رسول کی بطول بیٹی کا۔ جب کمرہ نمبر 18 دیکھا، میں نے کہا بی بی وہاں بھی آپ کے حصار میں تھا، یہاں بھی آپ کے حصار میں ہوں۔ بی بی نے شفا عطا کی۔ آج آپ کی زیارتیں کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور ذکر بھرپور ہوگا، انداز اگرچہ تھوڑا سا مختلف ہوگا،
لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایک ایک لفظ عبادت میں شمار ہوگا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کہا جاتا جی دعا کریں جی، جو ذکر ہے اللہ قبول کرے، جو ہم نے کہا اللہ قبول کرے، مجلس عزا جو کروائی ہے، جشن جو منایا ہے اللہ قبول کرے۔ ایسی بات نہیں ہوتی، جشن کی محفل سجاتا ہی وہ ہے، پہلے قبولیت کی مہر لگتی ہے پھر ہوتی ہے۔ اور آپ چل کے یہاں آتے تب ہو، پہلے آپ پہ مہر لگتی ہے تب یہاں آتے ہو۔ ہاں یہ قبول اور مقبول، ہاں دعا کیا کریں اللہ مقبول کرے۔ یہ چہروں پہ آثار، چونکہ ہر چہرہ علی بادشاہ کے ذکر میں نہیں مسکرا سکتا، علی کے ذکر میں فقط وہی چہرہ مسکراتا ہے جس نے خود نہیں بلکہ اس کی ماں نے عالم الست میں اپنے شجرے کے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی ہوتی ہے۔ ہاں نسلیں قربان کر دوں، میں اپنی عزتیں قربان کر دوں، چونکہ ذکر ہے، سلسلہ ایسا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور ویسے بھی علی بادشاہ کا ذکر ایسا ذکر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑی پریشانیاں پیدا کر دی ہیں، حیرانیاں پیدا کر دی ہیں، جی علی یہاں پہ ہے یہاں پہ نہیں ہے، علی یہاں پہ ہے یہاں پہ نہیں ہے، حدود اور قیود کی بات کرنا شروع کر دی۔ آؤ ایک ایسا محقق گزرا ہے، نام جس کا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اہل حدیث سے تعلق ہے۔ اس کے پاس کچھ بندے آ گئے، آ کے پوچھا کہ قبلہ فرمائیے آپ کے نزدیک علی بادشاہ کا مقام کیا ہے، آپ کے نزدیک علی بادشاہ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کے نزدیک علی بادشاہ کی عزت کیا ہے۔ اہل حدیث تھا، کہتے میں اس علی کا ذکر کیسے کروں، وہ علی 3 سیکنڈ پہ مشتمل جس کی تلوار کا ایک وار آدم سے لے کے قیامت تک ہر سجدہ کرنے والے کے سجدے سے افضل ہو جائے، وہ علی ہوتا ہے۔ تو جو ہے تے ابو کلان جو ہاتھ کٹ کے ذرا نعرہ سنا دے انہوں تو وہ ہاتھ بلند کر کے میں نے یہ گفٹ کیا آپ کو، ہاتھ باہر نکالنے کا جو کہا ایسے ہی نہیں کہا، میں آپ کو انعام دینا چاہ رہا ہوں۔ جب کوئی ذاکر مولوی کہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کریں نعرہ لگاؤ تو لگا دیا کرو، چونکہ وہ آپ کو مفت و مفت وہ جیتے رہو۔ چلو بچے نے مجھے یاد کرا دیا، میں 15-20 سال کا آپ سے تعلق ہے اور میرا گھر ہے۔ میسم بھائی کی UK سے مجھے کال آ رہی تھی، بھائی جان اگر ٹائم نہ آئے تو وہ ناراضگی ہو ویسی۔ میں جناب 5 بجے کا آگے بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ ہوں بانی بن کے، زبانی کلامی نہیں۔ یہ آل محمد کی دین ہے کہ تقی عباس جویہ کا بزم ولایت علی علیہ السلام کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی مومن عزادار جو کہے میں نظر نیاز کا اہتمام نہیں کر سکتا لیکن مجلس کروانی ہے، منبر حسین پہ میرا وعدہ ہے کہ کائنات کی مالکن کی خوشنودی کے لیے اپنی گاڑی پہ جاؤں گا بھی، جو نظر نیاز ہو سکی وہ بھی پیش کروں گا۔ میں کہتا ہوں مجھے یہ زندگی، نئی زندگی بی بی نے، کائنات کی مالکن نے دی ہے، ایک ایک سانس وقف کر دی ہے ان کے لیے جو کائنات بننے سے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، کائنات کے بعد بھی ہوں گے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائی آپ نے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ میرے بڑے 2 معتبر بزرگ شاید اٹھ گئے، کوئی شرعی مجبوری ہے لیکن بڑی پیاری باتیں بڑے اچھے انداز میں سن رہے تھے۔ میں چونکہ بات سب کے لیے ہوتی ہے، ذکر محمد و آل محمد سب کے لیے ہے، اور علی بادشاہ کا ذکر جو ہے اس کے بغیر تو کوئی شے مکمل ہی نہیں۔ ہاں چلے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے 4-5 سال پیچھے لے چلتا ہوں۔ ایک قطعہ میرا پوری دنیا میں چل رہا ہے، مشہور ہے، ہر بندہ ہر ذاکر پڑھتا ہے، آج میں پھر اپنی زبان سے آپ کو سناؤں، لطف آئے گا آپ کو۔ کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون۔
कलाम शायर बज़बान शायर सुना होगा आपने लोगों से, लेकिन आज जो खालिक है जिसने लिखा है वो सुनाना चाह रहा है। कम ज़र्फ़ कौन कौन है, आली है कौन कौन, मुनकर है कौन कौन, मवाली है कौन कौन। मौला अली के नाम का नारा सुना के देख, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। जश्न का रंग ये है, ये जश्न का रंग है। मैं 1000 बार पढ़ूं नौकरी है, बार बार पढ़ूं, बार बार पढ़ूं। चलें, इसके बदले में और पेश कर देता हूं, चूंकि जिन्होंने मुझे सेहत कामिला अता की, एक नई जिंदगी दी है, जिंदगी वक्फ है उनके लिए। मेरे बच्चे, मेरा घर बार, मेरी खानदान, मेरी जायदाद, मेरे खून का आखिरी कतरा वक्फ है विलायत हैदर कर्रार के लिए। और क्यों ना हो विलायत हैदर कर्रार का इकरार और प्रचार जिसने भी किया, यहां भी कामयाब, वहां भी कामयाब। और विलायत का इनकार करने वाला वो 7 नमाजें पढ़े, यहां भी काफिर, वहां भी काफिर। सलामती, मौला आपको आबाद रखे। भाई ने कहा फिर पढ़ो, फिर पढ़ देता हूं, लेकिन उसका बदल दूं, एक और अच्छी उससे बड़ी बात करना चाहता हूं। नकल हो तुम जान पाओगे भला क्या असल को। सारे भाई जाग के, सर्दी मुझे आप सबसे ज्यादा लग रही है, लेकिन मैं चादर उतार के आ गया, क्योंकि अली का जिक्र ऐसा है जो सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में सर्दी ऐसा माहौल बना देता है। नकल हो तुम जान पाओगे भला क्या असल को, अक्ल के अंदो हुआ है क्या तुम्हारी अक्ल को। हैदर कर्रार के नारे में वो तासीर है, हम भरे बाजार में पहचानते हैं नस्ल को। मैंने कहा जल्दी जल्दी, चूंकि कोई तवील मौजू मजमून पढ़ने की ना मेरी कुव्वत ताकत, क्या मेरी औकात ही नहीं, अली बादशाह का जिक्र कैसे करूं। हाँ, जल्दी से वो तोहफा दूं आपको। मैंने कहा दोनों हाथ बुलंद करने वाला। भाईजान कह रहे कितना सोना पढ़ते पे मौलवी, तो मैनू ही कह दो डायरेक्ट की हुंदा है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा आया था नहीं। जब कोई दोनों हाथ बुलंद करने का कहे, कर लिया करें, बेशक सर्दी हो। क्यों? वो आपको तोहफा देता है जी, कोई फालतू बात नहीं। कोई कहे दोनों हाथ, जोर से कर लिया करो, शर्माया ना करो। भाई कितना बड़ा तोहफा है, यहां बैठ के बैठे 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 यहां पे सरपाक की सरजमीन पे, सरपाक की सफ़े एजाज सफ़े जश्न पे बैठे बैठे वो खतीब आपको यहां से बराह रास्त गदीर के मैदान में लिए चलता है। आपको तोहफा ये देता है कि दोनों हाथ बुलंद करो। एक हाथ सुन्नत है मुस्तफ़ा की, दूसरा मुर्तदा की। सलामत रहिए, मौला आपको आबाद रखे। अली बादशाह ये वो हस्ती है, ये वो अजीमुल मर्तबत अल्लाह की मखलूक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यकीनन आप मेरे बात पढ़ेंगे। मैं पहले कह चुका कि कुछ चुनी चुनी बातें करना चाह रहा हूँ, जो लुत्फ है आपको, जो बापरे जहनों में चीज़ें महफूज होकर रह जाएं। मैं किसी को परेशान नहीं आया, ना परेशान नहीं करना मुझे, ना मेरी ये होती है। जो मेरा मिशन ये है, बज़्म विलायत अली का जो रूप का चेयरमैन हूँ, मैं शिया हूँ, अली वाला हूँ, अलीयुन वलीउल्लाह वाला। ने तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मुझे देख के परेशान ना हो जाए। अलीयुन वलीउल्लाह वाला, अलीयुन वलीउल्लाह की आवाज़ उठा के मेरी कोई मजलिस, मेरी कोई मजलिस, मेरी कोई मजलिस अली बादशाह के जिक्र के बगैर नहीं होती।
भाई क्यों हो? अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया है ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी हर मजलिस को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र के साथ। मैं अपनी हर मजलिस को जीनत देने के लिए अली बादशाह का जिक्र करता हूँ और खूब करता हूँ। क्यों? हम अली वाले हैं, हम अली वलीउल्लाह वाले हैं। बज़्म विलायत अली के प्लेटफार्म से मेरा ऐलान यही है कि हम अली वाले अपने अली को उसी तरह अली मानते हैं जिस तरह अली ने अली को अली बनाया है, या जिस तरह सरदार अंबिया ने अली को अली मनवाया है। अब इस पे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो परेशान होता है फिर उसकी परेशानी मुकद्दर है। भाई सबसे पहले परेशानी अली बादशाह के जिक्र सुन के, अली बादशाह पे इनाम होने का सुन के किसको हुई थी? वो उसे हुई थी जिसके सर पे पत्थर पड़ा, और पत्थर ऐसा पड़ा कि उसको चीरते हुए जानवर जिसके ऊपर बैठा था उसको भी चीर के चला गया। वो जमाने को बताना ये चाह रहा था, पत्थर फेंकने वाला जमाने को बताना ये चाह रहा था कि अली का दुश्मन ही अजाब का मुस्तहिक नहीं, जो अली के दुश्मन से मिलता है वो भी अजाब का। दम मस्त कलंदर, सारे मिलके दम मस्त कलंदर, तेरे दिल के अंदर मेरे दिल के अंदर हर एक हलाली बोलेगा नारा हैदरी। जियो। बस मुख्तसर कर दिया मैंने, मेरे बाद भाई आ गए, चूंकि वक्त भी इतना है। लुत्फ आ रहा है आपको? सलामती। एक मुश्किल बात करने लगा हूं। अल्लाह की इस कायनात में दो हस्तियां ऐसी हैं जो अपनी ज़ात में भी वाहिद हैं, अपनी सिफात में भी वाहिद हैं, अपने किरदार में भी वाहिद हैं, अपने मायार में भी वाहिद हैं। आपका चुप करना बनता है। जो हर लिहाज से वाहिद हैं, सिफात में, ज़ात में, किरदार में, मायार में। कौन सी दो हस्तियां? एक हस्ती है जली की, दूसरी हस्ती है अली की। मेरे बात सोचिए कि मैं क्या रहा हूं, क्या कह गया, आपने क्या सुना? एक जली है, एक अली है, जो ज़ात में वाहिद, सिफात में वाहिद, किरदार में वाहिद, मायार में वाहिद। चले जल्दी से बात को खोल देता हूं भाई की मौजूदगी में। एक जली है, ना जली की बातें खत्म होती हैं, ना अली की बातें खत्म होती हैं। आधे घंटे की गुफ्तगू थी, गुफ्तगू सारी मैंने छोड़ दी। अल्लाह का नबी मस्जिद नबवी मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा का, सहाबा कबार का जम्मे गफीर, नबियों के सरदार नबी मंबर पे सहाबी मौजूद हैं। अल्लाह का नबी अल्लाह की बातें कर रहा है। सूरह लुकमान है, आयत नंबर 27 है। अल्लाह का नबी बता रहा था कि अल्लाह फरमाता है लो अन्नमा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अकलाम वल बहरो यमुद्दहु सबअतुन। तवज्जो है। नौफिदत कालिमतुल्लाह इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। भाई देखना मेरी तरफ है, मैं सारी खिताबत छोड़ के सिर्फ आयत पढ़ने लगा हूं। सूरह लुकमान आयत नंबर 27। अल्लाह फरमाता है, नबियों का सरदार नबी सहाबियों को बता रहा है, ऐ मेरे सहाबियों, अल्लाह फरमाता है कि अगर सारी कायनात के दरख्त कलमे बन जाएं, सारी कायनात के समंदर स्याही बन जाएं, उसके बाद 7 समंदर और भी हों, तो तेरे अल्लाह की बातें खत्म नहीं होती। सहाबी बैठे थे, नया नया कलमा पड़ा था। भाई सहाबा के कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा है। बैठे हुए हैं, पूछा या रसूल अल्लाह
अल्लाह की इतनी बातें हैं कि ख़त्म नहीं होती, इतनी बातें हैं अल्लाह की, इतनी बातें हैं। अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कान आई, फरमाया सिर्फ अल्लाह ही नहीं, मेरा भाई अली भी वो हस्ती है जिसकी बातें ख़त्म नहीं होती। ओ हो, जो नहीं बोला यहाँ पे आया ही नहीं। मैं कहूँगा आपका आना फजूल है, मौला आपको सलामत रखे। मैं अपने पास से बात करूँ, मैं मिंबर वालों का मुजरम। कहा सिर्फ अल्लाह की नहीं, मेरे भाई अली की बातें भी ख़त्म नहीं होती। हदीस पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह का नबी फरमाता है लो अन्नल अशजारु अकलामुन वल बहरु मद्दादुन वल जिन्नु हुस्साबुन वल इंसु कुत्ताबुन मा अहसौ फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह का नबी सहाबियों से फरमा रहा था कि सिर्फ अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होती। आओ देखो, ये मेरा अली मेरे पास बैठा हुआ है, इसके बारे में भी अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि ऐलान करूं कि अगर पूरी कायनात के दरख्त कलमे बन जाएं, समंदर स्याही बन जाएं, जिन हिसाब करने वाले बन जाएं, इंसान लिखने वाले बन जाएं, तो जो है लिखते लिखते इंसान मर जाएंगे, लेकिन अली की फजीलत की इंतहा को नहीं पहुंच सकेंगे। ना अल्लाह की बातें खत्म होती हैं, ना अली की बातें खत्म होती हैं। अब अल्लाह जाने मुसलमानों ने, मेरे अहले ईमान साथियों ने अली बादशाह को समझा क्या है। देखो, अली वलीउल्लाह पढ़ना हुक्म है, कहते जी अली को हद से बढ़ा देते हैं, हमारी कोई औकात नहीं अली को हद से बढ़ाना। हाँ, हम तो नबियों के सरदार नबी के फरमान की तामील करते हैं। अल्लाह के नबी ने कदम कदम पे मुकाम बताया है हैदर कर्रार का, कदम कदम पे समझाया है कि मैं क्या हूं, अली क्या है, अल्लाह क्या है। अब शियों का अकीदा ये है कि अल्लाह और मुस्तफ़ा से अली को बड़ा नहीं मानते, अल्लाह और मुस्तफ़ा के बाद सबसे बड़ा किसी को अली के सिवा नहीं मानते। इससे बड़ी बात और कोई नहीं। बस आखिरी बात कर रहा हूं फजीलत की, और इसी पे तमाम। अल्लाह के नबी ने एक फरमान इरशाद फरमाया था, उलमा उम्मती अफजल मिन अंबियाए बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों से अफजल हैं। ये जो भाई हिलते जुलते हैं ना, मेरा ईमान, मेरा अमल वहाँ पे हिलना जुलना शुरू हो जाता कि आप शायद हाज़िर नहीं हैं। भाई यूनिवर्सिटी है, ये दरसगाह है, यहाँ कुछ आपने लेके जाना है। मैंने क्या पढ़ा है अभी, क्या पढ़ा है मैंने? हदीस पढ़ी है, क्या तर्जमा किया, पता होना चाहिए ना आपको। शाबाश शाबाश। परेशानी इस बात की है कि मेरी कौम को एक अजीब रास्ते पे लगा दिया गया, हालांकि जहां बैठे हुए आम जगह नहीं। मेरे छठे बादशाह से किसी ने पूछा था, मौला आपके जद की मजलिस या जश्न में आने का अजर क्या है? मौला ने फरमाया, तुम घर से चल के आके हमारे अजदाद के जश्न या मजलिस में बैठते हो, तुम यहाँ बैठते हो, दियारुकुम लकुमुल जन्ना, तुम्हारे घर जन्नत बन जाते हैं। ये इस मुकाम का ये फजीलत है। तो यहाँ बैठो हाजिर नाजर होके, उनकी मौजूदगी को समझते हुए। उलमा उम्मती अफजल मिन अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों से अफजल हैं। ज़रा सोचो, जो आलम हैं मुसलमानों के, वो उन नबियों से अफजल हो सकते हैं? नहीं। बोलो तो सही यार, की हो गया? नहीं हो सकते। तो फरमान है कायनात दे सब तो बड़े सादक दा गलत भी नहीं हो सकता। भाईजान, नबियों के सरदार नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों से अफजल हैं। 4 या 5 मिनट में मैं भाई के हवाले कर रहा हूँ, लेकिन नतीजा देना चाह रहा हूँ।
अब कोई तो आलिम है जो बनी इसराइल के नबियों से अफजल है, चूंकि फरमान रसालत माब है। यहाँ बेशक नारा ना लगाए, बाहर जो भाई खड़े हैं उन तक भी तोहफा पहुंच जाएगा। भाई कोई तो आलिम है ना जो बनी इसराइल के नबियों से अफजल। अच्छा, ये रसूल कायनात ने जब फरमाया, आपने पर्दा फरमाया, ज़ाहरी तौर पे हमसे गायब हो गए, यूं तो आज भी मौजूद हैं। भाई हम उस नबी को मानते हैं जो उस वक्त भी थे जब कुछ भी नहीं था, उस वक्त भी होंगे जब कुछ भी नहीं होगा। वजह खल्क़ कायनात नबी जो आज हाजिर भी हैं, नाज़िर भी हैं, जो मौजूद भी हैं, आज भी हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैं नस्लें कुर्बान कर दूं, क्योंकि मैं इबादत समझ के, इबादत है, इबादत समझ के नौकरी पेश कर रहा हूं। अच्छा, कोई तो आलिम है जो बनी इसराइल के नबियों से अफजल है। बोले जो नबी बनी इसराइल के नबियों से अफजल है। ढूंढना पड़ेगा। रसूल कायनात ने पर्दा फरमाया, ये हदीस दूर दराज तक पहुंची, यमन तक, यूनान तक, मिस्र तक। कुछ लोग इकट्ठे हुए, हजरत ईसा के उम्मती, हजरत दाऊद के उम्मती, हजरत मूसा के उम्मती, 4 नबियों के उम्मती इकट्ठे हुए कि ये मुसलमानों के नबी ने जो फरमाया है, चूंकि बनी इसराइल के नबी थे, उनके आलम हमारे नबियों से अफजल हैं। आओ पता करते हैं। बेटा देखो मेरी तरफ, हंसना नहीं, पता करते हैं। चारों इकट्ठे हुए, आए मदीने, पूछा मुसलमानों आपके नबी सादिक थे? फरमाया हाँ सादिक थे, सच्चे थे। 3 या 4 मिनट में नतीजा देना चाह रहा हूं। कहा सच्चे थे? हाँ क्या सच्चे थे। कहा ये जो हदीस है उलमा उम्मती अफज़ल मिन अंबिया बनी इसराइल, उलमा उम्मती अफज़ल मिन अंबिया बनी इसराइल, ये हदीस आपके नबी की है? मैं हाँ। आपके नबी सच्चे? हाँ। कहाँ हैं आपके नबी? और वो तो पर्दा कर गए। कहा उनका जानशीन कौन है? कहा मिंबर पे। कहा हमें उनके पास ले चलो। आगे आगे वो चले, पीछे पीछे ये चले। उम्मती जो आए थे नबियों के मानने वाले, पहुंचे दरबार में, जाके फिर यही हदीस दोहराई। पूरी तो जो वकील विलायत अली यहाँ सरपाक की सरजमीन पे इस मरकजी इमाम बारगाह में बहुत बड़ा नुक्ता आपको देना चाह रहा है कि क्या आलिम कौन होता है, और नबियों के सरदार नबी के फरमान के मुताबिक जो बनी इसराइल के नबियों से अफजल है वो कौन है। दरबार सजा हुआ था, तख्त पे मौजूद थे एक शख्सियत। इन्होंने फिर वही सवाल किया कि उलमा उम्मती अफज़ल मिन अंबिया बनी इसराइल, आपके नबी का ये फरमान है? मैं हाँ। ये सच है? कहा हाँ। कहा उलमा बैठे हुए? कहा हाँ बैठे हुए। अब उलमा बैठे थे, अमामे अबाक कबाब, उन्होंने और जाहिर की कि जी हम आलिम हैं। कहा मैं मूसा का उम्मती हूँ, मेरा नबी मूसा जो बनी इसराइल से था वो यूं छड़ी फेंकता था अज़दहा बन जाता था, तुम में कोई ऐसा है जो ये कर सके? दाऊद नबी का एक मानने वाला सामने आया, आके कहता है मेरा नबी दाऊद था जो बनी इसराइल के उम्मत से, बनी इसराइल के नबी था, वो लोहे को मोम कर लिया करता था, तुम में कोई ऐसा आलम है जो लोहे को मोम कर ले? नजरें झुकने लगी। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती सामने आया, आके कहता है कि मेरा नबी मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा कर लेता था, बताओ तुम में कोई ऐसा आलम है जो मुर्दा को जिंदा कर सके? अबाएं कबाएं अमाम में उतर गए। कहा या तो ये मानो
तुम्हारे नबी का माअज़ल्लाह फरमान गलत है, या कोई आलिम ऐसा दिखाओ जो मुर्दा को जिंदा कर सके, जो लोहे को मोम कर सके, जो ठोकर मारे मुर्दा जिंदा हो जाए, और जो अज़दहा छड़ी से बना सके। पीछे सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनकी पेशानी पे लिखा हुआ था अस्सलमान मिन्नी अहलल बैत। आके कहता है कि भाई आलिम तो ऐसा है, तुम गलत जगह पे गए हो। नहीं, जितनी बड़ी बात की है सारे मिलके बाज मात नारा सुनाए, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। आगे आगे सलमान चले, पीछे पीछे वो सारे मेहमान चले। चलते चलते पहुंचे अबू तालिब सरकार की हवेली के दरवाजे पे। वहां पे खड़े थे अली बादशाह। कहा सलमान, ये मेहमान जो साथ आए हैं जल्दी कर, इन्हें खाना खिला। हम इन्हें साबित करना चाहते हैं कि वो आलिम कौन है जो बनी इसराइल के नबियों से अफजल है। मेहमानों ने लंगर किया। अबू तालिब की हवेली से आगे आगे अली चले, पीछे पीछे सलमान चले, पीछे पीछे मेहमान चले। पहुंचे एक बागीचे में। अब बागीचे में पहुंच के अली बादशाह ने मूसा के उम्मती से कहा जरा ये बेलचा तो मुझे पकड़ा। बेलचा पकड़ने लगा, वो सांप बन चुका था। आगे चले आगे चले, आगे एक कब्रिस्तान में से गुजर हुआ। कब्रिस्तान में से गुजरते हुए जब मूसा के नबी ने वो बेलचे से अज़दहा बना लिया, लोग मुत्तमईन हो चुके थे। अब ईसा के उम्मती से अबू तालिब के लाल ने कहा कि मेरे पास आ। वो पास आया। कहा इस कब्र पे खड़े होके सिर्फ इशारा कर कि ए तुराब, तुम्हें अबू तुराब हुक्म देता है जो यहां दफन है खड़ा हो जाए। खड़ा हो गया, कब्र से बाहर आया। मानने वाले मान चुके थे। अब वो कब्र से बाहर आके 1 या 1.5 मिनट के अंदर नौकरी मुकम्मल। कब्र से बाहर आया, जल्दी से कदम चूमे अली बादशाह की, फिर खड़ा हुआ, फिर कदम चूमे, फिर खड़ा हो गया, फिर कदम चूमे, फिर खड़ा हो गया, फिर कदम चूमे, फिर खड़ा हो गया। जो मेहमान आए थे ना, कहते हैं भाई तू जिंदा तो हो गया, ये क्या कर रहा है, बार बार कदम चूम रहा है, बार बार कदम चूम रहा है, ये जुमला जाया चला गया, मैं समझूंगा मेरा जश्न जाया चला गया। पूरी तवज्जो चाहते हुए कहा हुआ क्या है? कदम चूमता है, हाथ बांधता है, गिर्द तवाफ करता है। अली बादशाह का तुम्हें हुआ क्या है? कहते हुआ कुछ नहीं, और कब्र में भी ये था, बाहर भी है।